So Ankit, if we just look for, as you were just talking about the MBA you're doing and looking for some of the business opportunity, looking for job opportunity as well. Would I just feel like if you get into private sector, so people from the private sector only can go for getting the job opportunity when there are some of the businesses. If the businesses are not getting started, or if the good business opportunities are not present in the market, the jobs also will not be Mm. done. So definitely, Yes. what I just feel as it's getting down, and in so many of the industries are getting over, and that's what happening. Like the way we were living earlier, this Corona period or lockdown period, this 2020, we must go for speaking. So, Shivani, just please go for muting your mic because the so many fighting is going on at your home and all the voice coming here. So, what I was just saying, as we were living earlier, as the style we were just adopting or the culture we were having and living standard we were having, there would be a lot of change, and already so many changes have come into the scenario. So we have to go for changing so many things. Only those traditional thought process through which we were living earlier, which will not be working now. So we have to work upon. We have to think like what will be there in the future. Only what I'm doing MBA. After getting MBA, I used to go for getting job easily. So will it be possible now to go for getting? So all those things are not going to be possible. Same as those things were there earlier. Now, what I just feel, if as our PM Modi also went for speaking, Atmanirbhar Bharat. So, what is Atmanirbhar Yes. Bharat? It's all about getting or starting new industries or starting new businesses. So many things are going to be changed. For example, as you're doing MBA and you just told that all the classes are going on online. So education industry is going to be changed now completely. Offline classes are going to be over and the people will start working online only. So the almost what I just feel as earlier 90% people were giving online education. Now 90% people would be giving offline. Sorry, earlier they were giving offline education. Now they will be giving online. Only few of the cases can be possible where the one to one or some of the or little number of people are there. The people are providing offline. Otherwise, everything will go online. The same Yes. the places, like if we just talk about uh, there are so many tourist places here in India. So the industries have gone down definitely, completely. The industries have gone down. So those people, and until the Corona period is going on, we cannot say that so many tourists are going to come here in India, or the people are going to visit so many places. So they people also will have to change. So many earlier traditional industries are going to be vanished, and so many new industries are Yes. going to be started. But job opportunities only will be coming when the industries are getting started. And if the industries are not coming, you won't be funding the job opportunity as well. So my suggestion would be here, if anybody asks for, and that actually not Mm. with the Corona period. Since beginning, I have Mm. been having this thought process. If anybody goes for asking that what we should be selecting, either a job or we should be going for the business, so I would definitely go for the business only. And one more thing over the part of business. Look, always remember, what is business exactly? Here, there are some of the points I'm going to share with you, and just try to understand. As many people are present here, जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, Yes. समझने की कोशिश करेगा, so that they may find some better idea about the business. So, what is a business exactly? Business is the solution of some of the problem. Every good business which is getting good or handsome earning to someone has to be the solution of some problem. When we are looking for solution of some problem, means the problem has to be there. And problem can be possible when there are so many means a lot of uh, uh, we can say disbalances there in the society, or so many issues are coming out. So what I must say, the people who are interested in making some of the career, this can be the best time to look for some of the business opportunity, because this is the time going on when the people are suffering with a lot of financial crunches, and people are suffering with so many other problems as well, and the lifestyle they were living with earlier, they will not be able to live. So these all the changes will go for evolving, or will go for making so many new businesses. When the problems are there, business will come out definitely.
सो इफ एनीबडी इज लुकिंग फॉर बिजनेस अपॉर्चुनिटी, और कोई भी अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, दैट्स फॉर श्योर कि जो पुरानी चीजें चली आ रही थी वो नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। लेकिन इस समय बहुत सारी नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज निकल कर आएंगी। तो अगर आपकी आंखें और कान थोड़े खुले हुए हैं, एंड इफ यू आर चेकिंग आउट, अगर आप चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको बहुत सारे बिजनेस आइडियाज मिल जाएंगे इस समय काम करने के लिए। तो आई वुड लुक फॉर जस्ट चेक आउट सम ऑफ द बिजनेस आइडिया, जिसके ऊपर थोड़े लंबे टाइम तक आप काम करते रहें और ज्यादा आपको टाइम ना देना पड़े, और धीरे धीरे काम करते 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 वो एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम बन जाए, तो उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। यू डूइंग जॉब, वेरी गुड, कर लीजिए, लेकिन साथ में किसी बिजनेस आइडिया के ऊपर जरूर काम करिए, और अभी से करना स्टार्ट करिए। मे बी पॉसिबल वेरी सून आप उसको इतना बड़ा बना दें कि शायद फिर आपको किसी भी जॉब की जरूरत ना पड़े, पहली चीज। दूसरी चीज आपको यहाँ पे जो समझनी पड़ेगी, एस वी पीपल आर देयर, हम मिडिल इनकम ग्रुप फैमिलीज को बिलोंग करते हैं। हम बहुत बड़े एंटरप्राइजेस को खड़ा करने की अगर सोचते हैं, तो हमें उसके लिए अच्छे इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होते हैं और बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। तो मिडिल इनकम ग्रुप फैमिलीज के लोग, और वैसे भी इस सिचुएशन में बहुत कुछ डाउन चला गया है, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है कि लोग जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो दे स्टार्ट थिंकिंग बिजनेस का मतलब है कि भाई मुझे एक ऐसी चीज मिल गई है जिसके साथ मुझे थ्रू आउट द लाइफ काम करना है। आई वुड से दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ एनीबडी हु इज गोना स्टार्ट एनी बिजनेस। बिजनेस वो चीज नहीं है जो आपको जिंदगी भर नौकर बनाने के लिए आपको काम करवाएगी। अगर आप एग्जैक्टली समझे, तो बिजनेस थिंग जो आपको ओनर बनाती है। एंड ओनर इज नॉट ओनली ऑफ योर प्रोडक्ट, ऑफ योर कंपनी, ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, ओनर ऑफ योर लाइफ। तो कोई भी छोटा बिजनेस जो स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है बिकने के लिए। और इस बात को अगर लोग समझ जाए, तो जिंदगी में बहुत अच्छी तरीके से बहुत और सारी अपॉर्चुनिटीज वो खोज सकते हैं। any small business is started to be sold out। अगर आप गौर करें, तो बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेस, व्हाट्सएप पता नहीं किसने स्टार्ट किया, बट फेसबुक को बेच दिया गया। ऐसे आप गौर करेंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे स्टार्टअप्स, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स, छोटी छोटी सर्विसेज पता नहीं किस किसने स्टार्ट की, और लेटर ऑन वो सारी चीजें किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन को सेल कर दिया गया उस प्राइस पर, उस वैल्यू पर, कि उसके बाद जिन्होंने उसको सेल किया है वो जिंदगी भर के लिए अपनी लाइफ को सिक्योर कर लेते हैं, और अब उनके पास फ्री टाइम होता है अपनी लाइफ की ओनरशिप लेने के लिए। उनके पास फ्री टाइम होता है और नए प्रोडक्ट्स के ऊपर सोचने के लिए। आई एम नॉट वेरी मच वेल अवेयर विद द नेम, शायद राकेश चौहान। आपको थोड़ा सा मुझे डाउट है, इस पे कंफर्म करना पड़ेगा। बट आई जस्ट रिमेंबर द पर्सन हु वेंट फॉर मेकिंग बिस्लरी हियर इन इंडिया। ही इज द पर्सन जो इस मामले में आपको Yes, दिखाई right. पड़ेगा इज द बेस्ट एग्जाम्पल। वो ब्रांड बनाते हैं, एक चीज लेकर आते हैं, उसको ब्रांड बनाते हैं और उसके बाद सेल आउट कर देते हैं। और नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि उनको सेल आउट करते हैं जो उनके सबसे बड़े राइवल्स हैं और कॉम्पिटिटर्स। और वो कॉम्पिटिटर, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इन्हीं से हो रही होती है, तो उनकी मुंह मांगी कीमत देते हैं उनके प्रोडक्ट की। सो यू जस्ट लुक फॉर, ये होता है बिजनेस। प्रॉब्लम का समय चल रहा है, और अगर आप ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो इस प्रॉब्लम वाले टाइम में से आपको बहुत सारी बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं प्रॉब्लम्स? आई जस्ट टेल, आप अपने आसपास की लाइफ को देखो जरा, चेक आउट, क्या कोई ऐसी चीज है जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम फील होती है अपनी लिविंग स्टाइल में रहने में, रोजमर्रा के जीवन में? और स्पेशली अगर वो डेली लाइफ या रोजमर्रा के जीवन में कोई प्रॉब्लम है, तो जैसे वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है ना, वैसे प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों की लाइफ में होगी, और हर कोई उसके सॉल्यूशन को ढूंढने की कोशिश कर रहा होगा। तो इफ यू रियली वांट टू गो फॉर स्टार्टिंग ए बिजनेस, वैसे मैं आपके साथ यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी शेयर करूंगा, और मैं आपको बताता रहूंगा कि इसको किया जा सकता है, इसको किया जा सकता है। बट दिस इज माय सजेशन कि आगे जितने भी बिजनेसेस चलेंगे वो बहुत अच्छे चले, वो सर्विस बेस्ड बिजनेस होंगे, जहाँ पे प्रोडक्ट पता नहीं किसका होगा, लेकिन कोई पर्सन सर्विस प्रोवाइड करवा रहा होगा बहुत अच्छी तरीके से, और अच्छी तरीके से अर्न कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल जोमेटो। तो जोमेटो इज एक्चुअली इज नॉट हैविंग एनी ऑफ द प्रोडक्ट, उनका खुद का अपना कोई प्रोडक्ट नहीं है, दुनिया का प्रोडक्ट है जिसको वो इधर से उधर पहुंचाते हैं, और अच्छा खासा उसके बदले उनको शेयर मिलता है, अच्छा खासा शेयर मिलता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज है, आप इसमें ये समझिए उनके मॉडल में, वो ये है कि मान लीजिए मैं एक रेस्टोरेंट चलाता हूँ, मैंने जोमेटो से कॉन्टैक्ट किया, टाइप किया, तो जोमेटो मुझसे 20%, 19%, 15%, वो अपना अलग अलग उनका क्राइटेरिया होता है, इतना परसेंट
वो अपना शेयर रखते हैं कि भाई हम आपसे लेंगे, आपके साथ जब टाई अप करेंगे। अब मेरा रेस्टोरेंट से जितना भी माल जाता है, जितना भी सब कुछ बिकता है, वो सारा पैसा ज़ोमैटो के पास आता है और वो पैसा मुझे जब दिया जाता है, वो 1 हफ्ते के बाद दिया जाता है अपना शेयर काट के। 1 हफ्ते तक इतना सारा बड़ा अमाउंट ज़ोमैटो के पास है, जिसको वो बहुत अच्छी तरीके से कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो होता है ना यूज़ करना, पैसे को सही तरीके से, इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से कहीं से भी इन्वेस्ट करना, ये लोगों को रिच बनाता है। अब यहाँ पे देखें उनका खुद का कोई प्रोडक्ट ना होते हुए भी वो दूसरों के पैसों को एन्जॉय कर रहे हैं एंड दे आर अर्निंग गुड हैंडसम। So this is really worth thinking कि जब वो कर सकते हैं, you also people can go for planning something these kind of things। और ये चीजें चलने वाली हैं, प्रोडक्ट मार्केट में है, उन प्रोडक्ट को नई तरीके से लोगों तक पहुंचाने में हेल्प कर देंगे या नई तरीके से प्रेजेंट करने में हेल्प कर देंगे, यू विल बी फाइंडिंग अ गुड बिजनेस। प्रॉब्लम्स की बात करें, आज हर कोई परेशान है, फूड इंडस्ट्री खत्म हो रही है, फास्ट फूड वगैरह कैसे खत्म हो रही है, क्योंकि लोग जो खा वहां पे जाके खाते थे वो नहीं हो पा रहा है। तो सॉल्यूशन का इसका सॉल्यूशन यही है कि टेक अवे वाला सीन चल रहा है, जोमेटो वगैरह इस पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसी में कुछ और आइडियाज अगर आप निकाल सकें, जब टेक अवे चल रहा है तो डेफिनेटली आपको अगर देखें तो डिस्पोजल्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट आएगी मार्केट में। टेक अवे तभी हो सकता है ना जब डिस्पोजल्स में उसको पैक करके अच्छी तरीके से दिया जा सके। तो डिस्पोजल्स की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट आएगी मार्केट में और आ रही है, क्योंकि जब हर चीज पैक होके जाएगी तो उसके लिए पैकिंग का सामान भी चाहिए होगा। डिस्पोजल्स चाहिए होंगे ऐसे जिनको यूज करें फेंक सकें। लेकिन यहाँ पे डिस्पोजल्स भी मार्केट में आ गए हैं। कुछ और नई चीज कर सोचते हैं इस पे। नई चीज क्या है कि भाई सरकार की तरफ से बार बार इस तरह की बातें आ रही हैं कि आप ऐसी चीजें यूज ना करें प्लास्टिक वगैरह से बनी हुई जो प्रॉब्लम क्रिएट करें। यू कैन लुक फॉर सम ऑफ दोस काइंड ऑफ सॉल्यूशन जो कि आसानी से डिस्पोजेबल हो। तो आप अगर देखें तो एक प्रॉब्लम आई है क्योंकि लोग बैठ के खा नहीं सकते हैं, इसलिए उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि भाई टेक अवे करें। टेक अवे करेंगे तो भाई उस टेक अवे के लिए कुछ ना कुछ प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी। वो प्रोडक्ट होगा डिस्पोजल। डिस्पोजल्स जो बनाने का काम करेंगे इस समय, आई एम जस्ट टेलिंग यू, डिस्पोजल्स जो बनाने का काम कर रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, हर एक कंपनी उनसे खरीदेगी, प्रोडक्ट बिकेगा और अच्छा खासा बिजनेस बनेगा डिस्पोजल्स का। दैट आई एम टेलिंग यू। अनदर वन आई जस्ट which industry can really work very good here, वो है पैकेजिंग की। ऑलरेडी चला आ रहा है ये काम, लेकिन अब ये इंडस्ट्री फलेगी फूलेगी और बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि कोरोना पीरियड में अभी लोगों को बड़ा डर लग रहा है कहीं से भी खुली हुई चीजों को लेने में। तो अब ज्यादा से ज्यादा पैकेज्ड आइटम सेल आउट होना स्टार्ट होंगे। जब ज्यादा से ज्यादा पैकेज्ड आइटम सेल होना स्टार्ट होंगे तो उनकी पैकेजिंग भी की जाएगी, और जब पैकेजिंग की जाएगी तो उन लोगों की रिक्वायरमेंट भी पड़ेगी जो इन कामों को कर रहे होंगे। सो यू कैन लुक फॉर दिस इंडस्ट्री, दिस इज अ फैंटास्टिक ऑप्शन और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर लोग पैकेजिंग में आना चाहते हैं। ऑलरेडी इसमें पहले से काम कर रहे थे पर अब इसमें बूम आएगा और बहुत तेजी से बूम आएगा पैकेजिंग इंडस्ट्री में। पहले हम बहुत सारी चीजें ऐसी ले लेते थे, अभी हमें नहीं मालूम कि आगे और कब कितनी सिचुएशन आने वाली है जब तक हम घर पे रहे और शायद दोबारा से लॉकडाउन ना लग जाए। तो ऑलमोस्ट ऑफ द पीपल विल डू दिस कि वो जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको घर पे पैकेज बनाकर पैकेजिंग करके उनकी ऑनलाइन डिलीवरी होगी या फिर उनको डिलीवर किया जाएगा। पूरे सर्विसेज की बहुत अच्छी जाएंगी अभी यहाँ पर। तो इनके थ्रू उनको किया जाएगा तो उनको पैकेज होना ही पड़ेगा। तो जो छोटी छोटी चीजें भी जो खुले में बिकती थी, सूजी आटा मैदा ये भी सब पैकेज होने स्टार्ट हो जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा बिकेंगे। अभी भी हो रहे हैं और अब इनकी ज्यादा बढ़ जाएगी। ऑलमोस्ट कुछ टाइम बाद देखेंगे विदेशों में कल्चर हो गया कि ज्यादातर पैकेज्ड फूड ही मिलते हैं। यहाँ पे भी वो कल्चर धीरे धीरे आ जाएगा और एक बार आप किसी नई हैबिट में आते हैं तो पुरानी हैबिट को छोड़ते हुए चले जाते हैं। तो पैकेजिंग की इंडस्ट्री अब बहुत तेजी से ऊपर जाएगी। इफ एनीबडी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टार्टिंग एनी ऑफ द न्यू बिजनेस कैन लुक फॉर दिस, इसके ऊपर काम कर सकता है। अभी कल मैंने बात करी थी बाइक्स के ऊपर कि बाइक्स की इंडस्ट्री भी बहुत तेजी से फलेगी फूलेगी और उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट था वो थोड़ा सा बढ़ा था। तो somebody told कि कुछ ऐसा बताइए जिसमें सर लो इन्वेस्टमेंट हो और उसके बाद आप हम काम कर सकें। सो लो इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो पैकेजिंग इंडस्ट्री में आप जा सकते हैं और लो इन्वेस्टमेंट के साथ ये काम हो सकता है। मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ कि क्या क्या प्रोडक्ट्स ऐसे हो सकते हैं जिनकी पैकेजिंग की जा सकती है। सो जस्ट कीप लुकिंग हियर, चेक दैट आउट एंड देयर कैन बी सो मेनी प्रोडक्ट्स। एंड मैं आपको कुछ मशीनें भी यहाँ पे शेयर करता हूँ, दिखाता हूँ सो दैट यू कैन चेक आउट विद दीज कैन बी द थिंग्स। जो एक आइडिया आपको मिल जाएगा, बाकी आप इनके बारे में और जानकारी लेना चाहें मुझसे पर्सनल तो मैं आपको वो जानकारी दे दूंगा। हियर आई एम जस्ट मेरे ख्याल से आपको दिखाई पड़ रहा होगा जो मैंने आपको शेयर किया है। एक एफएफएस मशीन के बारे में बात हो रही है जो टी कॉफी
माउथ फ्रेशनर, डिटर्जेंट, इस तरह की चीज़ों को पैकेज करने के काम आते हैं। ये जो मशीन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, 200 ग्राम से 2 ग्राम से लेके 200 ग्राम तक की पैकेजिंग ही करती है 1-1 क्लॉथ की मशीन। दूसरी नीचे आप मशीन देखेंगे तो इसमें भी टी, कॉफ़ी, माउथ फ्रेशनर, डिटर्जेंट ऑल इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो आप पैकेज कर सकते हैं। ये एक अलग तरह की मशीन है। I'll just show you some other options here as well. You can check out here. One more thing. ऊपर वाली HUN812 अगर आप देखेंगे तो दिस इज द मशीन जिसमें टोमेटो केचप, हेयर ऑयल, शैम्पू, लिक्विड जैसी चीजें इनको पैकेजिंग की जा सकती है। तो आप सोचेंगे आपकी जिंदगी में हर जगह पैकेजिंग है, हर जगह पैकेजिंग है। आप जो भी प्रोडक्ट्स यूज करते थे वहां पे पैकेजिंग थी और नए अब आगे जितनी प्रोडक्ट्स यूज होंगे वहां पे भी पैकेजिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। नीचे एक और है टी, कॉफी पाउडर वगैरह यहाँ पे पैकेज होते हैं इस मशीन के जरिए। अगर आप नीचे वाली देखें, I'll go for showing the another one. Here, बैंड सीलर मशीन है ना, पाउच सीलिंग करती है ये। और आप देखें तो बॉक्स वगैरह सील करने के लिए भी यहाँ पे कुछ मशीन्स हैं, इनकी भी पैकेजिंग इस तरह से होगी। एंड कुछ और बढ़िया बताता हूँ जो ज्यादातर प्रोडक्ट्स के साथ पैकेज होंगे और आजकल चलेंगे आगे। लेट मी गो फॉर शोइंग यू। हाँ, चेक आउट दिस बिस्किट्स, केक, स्कॉच बार, सोप, साबुन, ये वो सब पैकेजिंग इनके साथ हो जाएगी। ये मशीन अगर आप यहाँ पे देख रहे हो H1810 एंड H1811 अगर आप देखें तो ये जो तम्बाकू वगैरह जो होता है, खैनी, नजवार वगैरह जो छोटे छोटे इस तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं उनको पैकेज करने के लिए है ये मशीन। सर ये इंडस्ट्री के पास ऑलरेडी होगी ना वैसे? ये सारी मशीनें अवेलेबल हैं और लोग बहुत छोटी छोटी अब मशीनें बना रहे हैं जिसमें पहले कॉस्टिंग, एक्चुअली पहले जो मशीनें थी ना इनकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा बड़ी आती थी, बहुत सारे ऑप्शन रखते थे। तो लोग एक्चुअली क्या कर रहे हैं, मैं भी आपको बताऊंगा मार्केट के ऊपर कैसे सिनेरियो में काम किया जाता है ना। तो पहले मैं थोड़ा सा इनको दिखाता हूँ, देन आई जस्ट लुक कि मार्केट के ऊपर किस सिनेरियो में काम किया जाता है जिसकी वजह से अब थोड़ा चेंजेस आया है। अभी आप देखें HUN808 तो टोमेटो केचप, हेयर ऑयल, शैम्पू, लिक्विड वगैरह के लिए है। और देखें कॉफी, डिटर्जेंट वगैरह के लिए पैकेजिंग का है ना। इसमें 2 ग्राम से 300 ग्राम से आधा किलो, 1 किलो, 5 किलो तक की पैकेजिंग वगैरह हो जाती है। ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ 2 लोगों के होते हैं, एक जो माल इस पर डाल रहा हो, दूसरा बस पैकेट्स निकाल रहा हो, बस हो गया काम और कुछ नहीं करना पड़ता। स्पाइसेस, मेहंदी, गुलाल, आटा, बेसन वगैरह सब इसमें पैकेजिंग हो सकती है। ठीक है, ये देखें आप नीचे कुरकुरा और जो हम वगैरह पल्सेस दाल वगैरह होती है, बहुत सारे वेफर्स वगैरह खाते हैं, उनकी पैकेजिंग के लिए है ये। जस्ट चेक आउट हियर। So there's so many. I'm showing you here different kind of machines are there. So let me tell you here how you can go for working with the industry और industries में किस तरह की changes are। अभी क्या है कि पहले इस तरह की मशीन बनाने की कोशिश की जाती थी और बिजनेस में लोग इस तरह की चीजें देखने की कोशिश करते थे कि मैं कोई एक चीज लेकर आऊं और उससे सारा का सारा काम कर लूं। और ये थोड़ा सा पहले चल जाता था ये सिस्टम, लेकिन ये अब थोड़ा सा बदलता जा रहा है। अभी क्या हो गया है, फॉर एग्जाम्पल आप देखें कि एक डॉक्टर जो आपने देखा बहुत सारे होते हैं जो सारी चीजों की दवा आपको दे देते हैं। आपको बुखार हो गया आप उसके पास चले आइए, आपको ये प्रॉब्लम हो गई इसके पास चले आइए, वो सारी दवा आपको दे देगा। तो नॉर्मली आप गौर करोगे उसकी फीस होगी 200, 300, 100, 200, 300 इस तरह की। लेकिन अगर कोई स्पेशलिस्ट है किसी पर्टिकुलर चीज का, कोई कार्डियोलॉजिस्ट है, कोई इस चीज से डर्मोलॉजिस्ट है, कोई इस चीज का स्किन स्पेशलिस्ट है, कोई ये है, तो उनकी फीस हाई होती है। तो स्पेशलिस्ट जो होते हैं उनकी फी हाई होती है। हर बिजनेस में ये सिखाया जाता है। आप एमबीए के स्टूडेंट अंके शायद आपको पढ़ा होगा, मैं नहीं हूं, पर मैं इतना समझता हूं कि अगर मैं स्पेशलिस्ट हूं किसी चीज का तो स्पेशली मुझे मेरे प्रोडक्ट के लिए दुनिया जाने। अब फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे इंस्टीट्यूट जो है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, राजू कोला को लोग समझते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे आए जिन्होंने अभी वन डे फाउंडेशन की क्लासेस स्टार्ट हुई, उनकी भी क्लास स्टार्ट कर दी, ये भी पढ़ाना शुरू कर दिया, ये भी पढ़ाना शुरू कर दिया। तो उसको एक कोचिंग के तौर पे जाना जाता है कि वहां पे चले आइए शायद कुछ ऑप्शन मिल जाए। लेकिन इंग्लिश की अगर बात आती है तो लोगों के दिमाग में हम क्लिक करते हैं बिकॉज वी आर स्पेशलिस्ट ऑफ दैट। तो ऐसी करके मशीनों के साथ इस समय ऐसा काम हुआ कि लोगों ने स्पेशलाइज्ड मशीन बनाना स्टार्ट की कि इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के लिए ये मशीन, इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के लिए ये मशीन। तो अगर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, पहले मशीनों की कीमत ज्यादा हो जाती थी, अब बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, तो छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ किसी स्पेशलाइज्ड कैटेगरी की पैकेजिंग के साथ वो अपना काम शुरू कर सकता है। बजट की बात करते हैं, तो अगर इनके बजट की बात करें तो नॉर्मली देखा गया है अगर आप इनका बिजनेस लगाना चाह रहे हैं तो इन मशीनों को लेने से लेकर बाकी सारी चीजों की डिलीवरी, जीएसटी वीएसटी सब पे करके नॉर्मली 1 लाख से लेकर 5 लाख तक की रेंज में आप अपना ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं पूरे सारे सिस्टम के साथ। 1 लाख की रेंज से 5 लाख तक
मशीन्स पे भी डिपेंड करता है कि कितनी पैकेजिंग कितने टाइम में कर रही है, तो वो वेरी करती है थोड़ी ऊपर नीचे। एक वही कैटेगरी की मशीन आपको 1.5-2 लाख में मिल जाएगी और वही प्रोडक्ट की मशीन एक 3-4 लाख में भी आएगी। तो 1 लाख से लेकर लगभग 5 लाख, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सभी में चलता है, कोई फिक्स एक अमाउंट नहीं बता रहा। ये मशीन और इनके प्रोजेक्ट आप लगा सकते हैं। तो दिस इज समथिंग अबाउट मशीन का बजट, या आप अगर इस बिजनेस में आना चाहते हैं तो इसका बजट। अब अगली सबसे बड़ी चीज जो बात होती है यहाँ पर वो ये निकल के आती है कि सर मशीन मालूम पड़ गई, बजट मालूम पड़ गया, लेकिन मार्केट कैसे करेंगे? सो मार्केट कैसे करेंगे, इसकी अगर आप बात करें, सो यू हैव टू चेक आउट। यहाँ पे भी सबसे पहले वो चीज आती है कि आपको ये देखना पड़ेगा जिस बिजनेस को या जिस मशीन को या जिस प्रोडक्ट की चीजों के साथ आप लेकर आ रहे हैं, तो आपकी टारगेट ऑडियंस कौन होगी, टारगेट क्लाइंट कौन सा होगा, उनको आपको देखना पड़ेगा ना। टारगेट क्लाइंट की अगर हम बात करें तो ये जो पैकेजिंग का जो काम है, ये पर्सनल केयर में भी चलता है, पर्सनल केयर के सारे प्रोडक्ट्स के साथ चलता है, हेल्थ केयर में भी चलता है, जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनको पैकेजिंग वगैरह करवानी होती है, तरह तरह के प्रोडक्ट्स उनके आते हैं, ठीक है। पर्सनल केयर में तो बहुत चलता ही चलता है। इसके अलावा एफएमसीजी पूरी चल रही है इनके साथ, और अभी तक तो जो खुले हुए प्रोडक्ट्स आते थे वो भी सारे के सारे जितने भी जो डेली नीड्स के सामान होते हैं पैकेज के साथ ही जाएंगे। तो यू हैव टू चेक आउट वेरी फर्स्ट कि बॉस आप किस कैटेगरी के साथ काम करने वाले हैं, आपकी टारगेटेड ऑडियंस कौन सी है, ठीक है। पहला काम तो आपको ये करना है। और टोबैको इंडस्ट्री है, पाउचेस वगैरह जो होते हैं सारी ये, तो फर्स्ट यू हैव टू लुक फॉर कि आप इनको देखें तो इनके बहुत सारे आपको बड़े बड़े क्लाइंटेज मिल जाएंगे जो प्रोडक्ट अपना बेचते हैं लेकिन पैकेजिंग कहीं और से कराते हैं। एंड यू कैन फाइंड सो मैनी पीपल, हर कैटेगरी का आपको बहुत सारे मिल जाएंगे और बहुत सारे ऑलरेडी पहले से काम कर रहे होंगे। बस आप जानते हैं किसी बिजनेस में कि व्हेन यू गेट इनसाइड, तो आपको करना ये होता है कि पहली चीज कि आपको अपनी सर्विस को सबसे ज़्यादा बेस्ट से बेस्ट बना के रखना है। दूसरा, अगर आप किसी बिज़नेस में अपने आप को बेटर करना चाहते हैं, सो यू हैव टू लुक फॉर कि आप कैसे एक्स्ट्रा दे सकते हैं किसी को भी। कैसे एक्स्ट्रा दे सकते हैं, कोई बात नहीं अंकित, नो प्रॉब्लम, हमारा भी बस थोड़ी देर में ये फिनिश हो जाएगा, ठीक है। सो अगर आप किसी भी बिज़नेस में जाना चाह रहे हैं, सो यू हैव टू लुक फॉर कैसे एक्स्ट्रा दे सकते हो। एक्स्ट्रा देने का मतलब ये नहीं कि आप उसको प्रोडक्ट एक्स्ट्रा दे रहे हैं, आप अपनी उसी चीज़ के साथ क्या-क्या एक्स्ट्रा फीचर्स दे सकते हैं सर्विसेज़ के तौर पे। अब एक्स्ट्रा सर्विसेज़ जब किसी को मिलती हैं, सो डेफिनिटली वो बाकी सारे लोगों को छोड़ के आपके साथ ही काम करना शुरू करेगा। यहाँ पे एक चीज़ और आप बना सकते हैं, क्रॉस सेलिंग कर सकते हैं। क्रॉस सेलिंग आजकल बहुत होती है। क्रॉस सेलिंग या फनल बनाना भी बोलते हैं इसको। और इस काम को आप अच्छा कर सकते हैं जिसके थ्रू आजकल ज़्यादातर लोग अर्न करते हैं। फॉर एग्जांपल फनल बनाना या क्रॉस सेलिंग क्या होती है, मैं उसका एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। लाइक आई गो टू वॉच मूवी, मैं एक थिएटर में जाता हूँ और एक मूवी मुझे वॉच करनी है। तो मैंने पता क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ बाहर से कि भाई इस मूवी का ये वाला टिकट कितने का है, तो मुझे मालूम पड़ा भाई 100 रुपए का टिकट है या 150 रुपए का टिकट है या 200 रुपए का टिकट है। तो मुझे बस कितना करना है कि बस 200 रुपए का टिकट है, मैं मूवी देख के आ जाऊंगा। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि सिर्फ 200 रुपए खर्च करके आप मूवी देख के आ जाते हैं। कई बार आपके 400, 500, 600 रुपए वहाँ पे खर्च हो जाते हैं। क्यों? आप गए थे सिर्फ मूवी देखने के लिए, टिकट 200 रुपए का था, पर इसके अलावा भी मूवी हॉल में बैठने के साथ कौन-कौन सी ऐसी चीजें हो सकती हैं पॉसिबल, जिनको आपको सेल आउट किया जा सकता है वहाँ पर। मूवी थिएटर वाले या फिर मल्टीप्लेक्स वाले लोग इस बारे में सोचते हैं और वो सारे प्रोडक्ट्स वहाँ पे लेकर आते हैं और आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं और आप उनको भी लेते हैं। तो पूरा सेम 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 आप किसी भी इंडस्ट्री में इस चीज को यूज कर सकते हैं। आई डू नॉट नो रियली व्हाट कैन बी द प्रोडक्ट्स, लेकिन ये फॉर्मूला हर इंडस्ट्री में चलता है और रियल सेल यहीं से निकल के आती है। एग्जैक्टली उनको मालूम है कि भाई मुझे इस चीज के लिए बस इतना पे आउट करना है, और उसके साथ ही और चीजें उनको दिखाते दिखाते क्रॉस सेल करते करते जो मेन अर्निंग होती है ना वो वहीं से निकल के आती है। तो इस इंडस्ट्री में भी आप ऐसा कर सकते हैं क्रॉस सेल से। और अगर आपके क्लाइंट हैं, अगर उनको दिखाई पड़ेगा कि आपके पास से ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिल जाती हैं और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, तो डेफिनिटली दे विल लुक फॉर योर ऑप्शन। तो दिस कैन बी अ गुड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी वगैरह आप ऐसे अपना सकते हैं। वैसे हर चीज़ की अपनी अलग-अलग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती हैं दैट यू कैन लुक फॉर, बट व्हाट आई जस्ट फील द पैकेजिंग बिजनेस कैन बी वन ऑफ द गुड ऑप्शन टू गो फॉर दिस टाइम। एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बट एज़ आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, लुक फॉर द सॉल्यूशन ऑलवेज़। और सॉल्यूशन प्रॉब्लम का निकलेगा, इस समय प्रॉब्लम का समय चल रहा है, आपको गौर ये करना है अपनी रियल लाइफ में, देखिए, समझिए, पहचानिए कि ऐसी कौन-सी प्रॉब्लम्स हैं जो आपके लिए प्रॉब्लम बन रही हैं, जिनका आप सॉल्यूशन चाहते हैं। नोट डाउन करिए।
हमारी जो क्लासेस हैं, हम इसी तरह से चलाते रहेंगे। डेली नए प्रोडक्ट्स के साथ मैं आपके सामने आऊँगा, उसकी इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँगा, उनकी जानकारी दूँगा। अच्छा, वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू गो फॉर शेयरिंग। एक और चीज़ है इसको मैं शेयर करना चाहूँगा। एक और काम आप कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया था कि पैकेजिंग में आजकल सरकार की तरफ से ऐसा आ रहा है कि इस तरह के प्रोडक्ट इस्तेमाल में आएँ जो आसानी से डिस्पोज़ल हो सकें। तो उनके ऊपर मैं आपको यहाँ पे कुछ शेयर करता हूँ, उनको भी आप देख सकते हैं और आप चाहें तो उसके ऊपर भी बिज़नेस प्लान कर सकते हैं। लेट मी गो फॉर शेयरिंग हियर सम ऑफ द थिंग्स। अ as I already went for showing you these all. So just check out here. I'll just show you some other few things. मुझे अच्छा लगा था, that's why I just want कि आप भी उनको देखें। तो आजकल इस तरह की पैकेजिंग भी स्टार्ट हो गई है जो डिस्पोजेबल है, जिनको आप डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। दीज यू कैन सी हियर। और ये यहाँ पे जो है पाउचेस हैं, आजकल इस तरह के काफी सारे मार्केट में आ रहे हैं। आप इस तरह की पैकेजिंग में आ सकते हैं। दिस इज व्हाट द वन साइड ब्राउन एंड अनदर साइड ट्रांसपेरेंट। इस तरह के पाउच, जिप वाले पाउचेस भी आने लग गए हैं और इस तरह के मटेरियल के साथ भी पैकेजिंग आजकल स्टार्ट हो गई है जो जो डिस्पोजेबल है। तो कुछ नया आइडिया आप लेकर आओगे अगर लोगों के सामने, तो डेफिनेटली इट विल वर्क। और इसमें उन लोगों को भी सॉल्यूशन मिल जाएगा जो बड़े परेशान है इस बात को लेकर कि उनका प्रोडक्ट पॉलीथिन में आ रहा है, इस वजह से सेल नहीं हो पा रहा, ये सरकार बैन कर दे रही है। तो इस तरह की चीजों के साथ भी आप वर्क कर सकते हैं। और ये प्रोडक्ट्स आजकल काफी चल रहे हैं। यू कैन चेक आउट हियर, डिस्पोजेबल है ये दोनों साइड से ब्राउन वाला है। एंड दिस इज, यू कैन सी दिस काइंड ऑफ आर देयर। और आजकल तो ये सारी चीजें पैकेज हो के चल रही हैं, तो इस तरह के प्रोडक्ट्स भी आप यूज कर सकते हैं। इनका भी मार्केट बहुत अच्छा है आगे आने वाले समय में। तो दीज आर व्हाट सम ऑफ द प्रोडक्ट्स। नीड टू रिमेंबर ऑलवेज कि जहाँ पे प्रॉब्लम होगी वहाँ पे सॉल्यूशन हर कोई चाहता है, जहाँ पे सॉल्यूशन होगा वहाँ पे बिजनेस बनेगा। एक एक्टिविटी मैं आपको जरूर बता सकता हूँ विच यू कैन गो फॉर डूइंग। हमारी जो ये क्लास है जिसमें मैं आपको प्रोडक्ट्स के बारे में या बिजनेस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा, ये हम प्राइस इन अ वीक चलाएंगे। एवरी वन परसेंट प्राइस इन अ वीक, 3 दिन हफ्ते में, मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे, MWF। इन 3 दिनों आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी हमारा चैनल है एक टेलीग्राम पे, टेलीग्राम आप यूज करते होंगे, व्हाट्सएप की तरह ये एप्लीकेशन होता है। तो आप सभी लोग वहां पर, मेरा नंबर आपके पास होगा ही, और नंबर नहीं है तो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर दे रहा हूँ। आप उस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पे अ, या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा उस टेलीग्राम चैनल का। सर आपसे एक क्वेश्चन था। या प्लीज पूछें। पर उससे पहले हमें इंडस्ट्री से मतलब सेटअप करना पड़ेगा, कुछ बात करनी पड़ेगी, जैसे कि वो मटेरियल बनाती है तो। लुक, आप, हाँ, आप अगर कोई बिजनेस करेंगे तो आपको ऐसे लोगों को, तो आपके क्लाइंट कौन होंगे? वही क्लाइंट होंगे जो पैकेजिंग करवाना चाहेंगे। तो पैकेजिंग करवाने वाले लोगों से तो आपको मिलना ही पड़ेगा। अब ऐसे आज हर इंडस्ट्री में पैकेजिंग होगी, हर इंडस्ट्री में, ठीक है। तो आपको उन लोगों से मिलना पड़ेगा। आप ज्यादा बड़े पे नहीं जाना चाहते तो आई वुड जस्ट से कि आप देखें आपके आसपास हर तरफ स्टोर्स है, और आजकल हर कोई अपने ब्रांड को लेके आना चाह रहा है। अच्छी फैसिलिटी, कोरोना की वजह से हर कोई अच्छी सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ चाहता है। तो आप चाहें तो सर इसको कांटेक्ट कैसे होगा? सॉरी, कांटेक्ट कैसे होगा वो इंडस्ट्री से कांटेक्ट कैसे हो पाएगा? आप अगर मान लीजिए किसी भी फील्ड में है, किसी भी बिजनेस में है, तो आपको डेफिनेटली अपने क्लाइंट्स को कांटेक्ट तो करना पड़ता है। आप अगर गौर करेंगे, आप अगर इसमें आते हैं पैकेजिंग की इंडस्ट्री में, आप पूरे यहाँ पे जाइए, मार्केट में जाइए, इतनी सारी शॉप्स आपको मिलेंगी। आप ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं, ब्रांडिंग कर सकते हैं सोशल मीडिया के जरिए, वहाँ पे से लोग खुद आपको कॉन्टैक्ट करते हैं। इसके अलावा मेगा मार्ट्स वगैरह होते हैं, इन लोगों को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी कंपनीज के नाम मिल जाएंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी आपको, जो कि अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रही हैं। आप उनके सामने प्रपोजल अपने रख सकते हैं, इस बात को कहते हुए कि भाई हम पैकेजिंग कर रहे हैं और हमारी ये क्वालिटीज हैं, ये सब कुछ है, और इन सारी फीचर्स के साथ हम आपको ही दे देंगे। कोई भी प्रोडक्ट है, आपको उसके लिए क्लाइंट तो चाहिए होगा, और क्लाइंट्स को आपको कॉन्टैक्ट तो करना पड़ता है। बिना मार्केट के आप कैसे करेंगे? यही मार्केटिंग होती है। तो आपको उन लोगों को तो ढूंढना पड़ेगा, और ढूंढने के लिए आज इंटरनेट के जमाने में ये बहुत आसान चीज हो गई है। आप सर्च करेंगे, आपको बहुत सारी ऐसी कंपनीज मिल जाएंगी। मैंने सबसे पहले बताया था आपको अपना टारगेट ऑडियंस पता करना पड़ेगा, किस तरह की मार्केट में जाना चाह रहे हैं। मान लीजिए आप एफएमसीजी में जा रहे हैं, तो एफएमसीजी वाली कंपनी आप ढूंढेंगे, 50 कंपनियां निकल के आ जाएंगी लिस्ट में, आपको आगरा की बहुत सारी मिल जाएंगी। सुपारी उपारी बनाने वाली कंपनी ढूंढेंगे, 50 निकल के आ जाएंगे, एंड यू कैन गो फॉर कॉन्टैक्टिंग देम, राइट। तो दिस एक्चुअली कैन बी द वेज। वैसे मार्केटिंग पे हम और भी बहुत सारी चीजें बता सकते हैं, आगे कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो किस दिन मैं इसी के ऊपर क्लास कर दूंगा, कैसे कैसे मार्केटिंग के अच्छे तरीके अपना सकते हैं। बट अभी तो मैं इसको कर रहा हूँ, और वो बेटर होगा कि आप मुझे ना, जो हमारा चैनल है
उसका एक ग्रुप भी है, आप वहाँ पे मुझे मैसेज डालेंगे सर इस चीज के ऊपर एक क्लास लीजिए, या इस प्रोडक्ट के ऊपर क्लास लीजिए, या मार्केटिंग के लिए ऊपर लीजिए, स्टार्टअप के ऊपर लीजिए, मैं उन सारी चीजों के ऊपर आपको क्लास देता रहूंगा। जस्ट यू हैव टू लुक फॉर कि मंडे वेडनेसडे फ्राइडे हमारी क्लास चलेगी, उस ग्रुप में अपनी नीड जो भी है आप उसके ऊपर बताइए, तो एक एक्टिविटी को जरूर करिएगा। अब हमारी अगली क्लास मंडे को होगी, मंडे को आपको वापस लिंक भेज दिया जाएगा। वन एक्टिविटी यू मस्ट गो फॉर डूइंग, जस्ट चेक आउट कि वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनका सॉल्यूशन आप चाहते हैं, और जितनी प्रॉब्लम्स आपको दिखाई पड़ रही हैं सबको लिस्ट करते जाइए। हो सकता है कि उनमें से कोई एक बिजनेस आइडिया निकल आए। अब आइडिया को बिजनेस में कैसे कन्वर्ट किया था वो भी मैं आपको किसी दिन क्लास में बताऊंगा। राइट गाइस, इसका रिकॉर्डेड वीडियो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। वहाँ पे वो जो चैनल है उस पर बहुत सारी चीजें भेजी जाती हैं, रिकॉर्डेड वीडियोज भी भेजे जाते हैं, सक्सेस स्टोरीज भी भेजी जाती हैं, बिजनेसमैन जो है जो अभी काफी सफल सफल बिजनेसमैन है, मोटिवेशनल कोट्स भी भेजी जाती हैं। तो उस चैनल पे आप जरूर जुड़िएगा, यू विल फाइंडिंग लॉट ऑफ बेनिफिट्स। सो गाइस, आवर टाइम इज गेटिंग ओवर। अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं 2 मिनट हमारे पास है, आप कर सकते हैं, उसके बाद अपने आप ही क्लास बंद हो जाएगी, अदरवाइज वी कैन फिनिश इट अप। एनीबॉडी? नो? चलिए गाइस, so I have just sent my number, you can join me on Telegram, मेरा जो बिजनेस ग्रुप है, और उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, हैव अ वेरी ग्रेट टाइम, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू।